This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. This block is devoted to the analysis of yes uh, till 12th unit we have studied the analysis of the quantitative data. It means that interval or ratio scale. But if we deal with the categorical data, so what statistics we have to use? This block is devoted for the nominal scale data or categorical data. So thus name as a classification of attributes. For the nominal scale data or categorical data, just we count the frequency. So mm, in this block, we will study how do we deal with the frequencies. So as you know, there are some characteristics which are not measured in numerical form, as the beauty, sickness, and caste. These are the quantities which we cannot measure numerically. So these type of data as categorized male or female, literate, illiterate, smoker, non-smoker. Then these called the attribute. If we divide the whole data on basis of a characteristic, then the classes are known as the characteristic is known as the attribute, and the classes are called the again a name as class. So in this block, we study all the things about these attributes. So we can do this is to count the number of person possesses a particular attribute. So in this block, we count the number of unit or person possesses a given attribute. If suppose we are take the attribute smoking, then we count the number of person possesses smoking. And if we are take as the male or female, so gender, then we categorize in two category, male and female. And yes, so main notation, because in this because we are dealing other type of variable. So first of all, we as in continuous case or as a quantitative analysis, we just use the x symbol for the variable. Here we use a, B, C for the classes, and alpha, beta, gamma also used for the denote the classes. Here the capital letters A, B, C, D, etc. are used for the class of possessors of a given attribute. Suppose we are smoking. Sorry, we are study of smoking attribute. Then we represent A, the number of person who is smoking, and the corresponding not smoker, then alpha is denoted the non-smoker. If and similarly, if we represent B as literate, beta is represent the illiterate. It means that the alpha, beta, gamma are represent the complementary of the ABC. Okay, so just in this chapter, we uh, first theoretical question represent in the symbolical form, and we represent the data in different classes as they are mentioned, and the classes are represented by the letters A, B, C, or the corresponding not possesses is alpha, beta, and gamma. Generally, we deal with the three attributes, at most three attributes, minimum one and two and three. So maximum three attributes we will deal in this chapter, alpha, beta, sorry, A, B, C. First class is denoted as A, and the opposition, yeah, and the complementary of first class is alpha, and similarly B, beta. Now, if we suppose we consider two attribute, one is A is denote the wealthy. So B, sorry, alpha is denote the wealthy opposite.
नॉट वेल्दी या पुअर। ऐसे सिमिलरली बी अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी इज रिप्रेजेंट एज द ब्लाइंड, आई थिंक सो ब्लाइंड लिया है इन्होंने, क्या लिया है हियर, बी रिप्रेजेंट द ब्लाइंडनेस। ओके, तो बीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीटा किसको रिप्रेजेंट, अगर बी को हम ब्लाइंडनेस कह रहे हैं तो बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लाइंडनेस। अगर चलिए दूसरा कहते हैं, अगर बी हम ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ब्लाइंड, है ना। सी अगर हमारा स्मोकर है तो गामा हमारा क्या बन जाएगा, नॉन स्मोकर। ठीक है, तो अब हम, ये तो हमारा सिंपल वन वन एट्रीब्यूट के लिए हुआ। अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, ए के साथ बी लगाएं, तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इट इज द क्लास ऑफ द वेल्दी पर्सन हु आर ब्लाइंड। ठीक है, एंड ऐसे ही ए बीटा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेल्दी को, तो इट इज ए क्लास ऑफ वेल्दी पर्सन हु आर नॉट ब्लाइंड। बी ब्लाइंड और बीटा क्या है, नॉट ब्लाइंड। ऐसे अगर हम बनाए अल्फा और बी बनाए, तो द पर्सन हु आर पुअर एंड ब्लाइंड। तो these alphabets, combination of alphabets is also represent a class। कोई बताएगा एबीसी क्या बनेगा, सर जो वेल्दी है एंड ब्लाइंड है और स्मोकर है, तो द रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर वेल्दी, ब्लाइंड एंड स्मोकर। ओके, क्या ए और अल्फा भी इकट्ठा आ सकता है, यस सर, ओपोनेंट क्लास में जाएगा ना, जो वेल्दी है और जो वेल्दी नहीं है। नहीं एक सर, क्लास ए में आ सकता है, अल्फाबेट में इकट्ठा आएगा, या तो कोई वेल्दी होगा या तो कोई नॉट वेल्दी होगा, कोई दोनों थोड़ी हो सकता है। या तो वेल्दी होगा या, तो यानी हमारी कंप्लीमेंट्री क्लासेस आपस में क्लब नहीं होंगी। अदर क्लासेस के कॉम्प्लीमेंट्री से तो क्लब हो सकता है, एक के साथ वी कैन अरेंज बीटा, बट वी कैन नॉट अरेंज ए अल्फा, बी बीटा एंड सी गामा। तो चलिए यहाँ पे ऐसे ही दिखा रखा है, ये ए इन्होंने लिया है, इट डिनोट्स द एट्रीब्यूट वेल्दी एंड बी डिनोट्स द ऑनेस्टी। तो ए बी क्या स्टैंड करेगा, ए बी इज द वेल्दी एंड ऑनेस्ट। ए बीटा क्या करेगा, वेल्दी एंड डिसऑनेस्ट। अल्फा बी, अल्फा वेल्दी का अपोजिट हो गया पुअर, पुअर एंड बी हो गया हमारा ऑनेस्ट, तो पुअर बट ऑनेस्ट। एंड अल्फा बीटा पुअर एंड डिसऑनेस्ट। ओके, अगर हम यहाँ पे सी को जेंडर ले लें तो हम बना सकते हैं ए बी सी। जेंडर अगर हम सी को मेल कह रहे हैं तो द स्टैंड फॉर वेल्दी, ऑनेस्ट मैन। एंड ऐसे ही ए बी, अगर हम गामा ले लें, सॉरी ये बी कर देते हैं, ए बी गामा, तो इट मीन्स हो गया मतलब स्टैंड फॉर द क्लास ऑफ wealthy person who are honest and female। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस, जो पूरा ये ब्लॉक है, सबसे पहले वी हैव टू लर्न हाउ वी रिप्रेजेंट अ क्लास इन सिंबॉलिकल फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना पड़ेगा। अगर आपसे ये आ गया है तो फिर इस ब्लॉक में कुछ नहीं है, बहुत इजी, इजीएस्ट, मैंने कहा जैसे पहले कहा था कि इट इज इजीएस्ट ब्लॉक, तो आप बहुत आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब आता है डिकोटोमी ऑफ डेटा। अगर हम डेटा को, इफ वी डिवाइड ईच व्हेन द इंडिविजुअल आर डिवाइड ओनली इनटू टू सब क्लासेस और complementary classes, not more, with respect to each attribute, then it is called the dichotomous classification। अगर मतलब हम क्लास, जो क्लास बना रहे हैं केवल टू ग्रुप में बनाए, जैसे मेल फीमेल, हेल्दी वेल्दी, है ना, सॉरी हेल्दी एंड नॉट हेल्दी, वेल्दी पुअर, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। तो अगर हम जो क्लासेस बना रहे हैं वो टू बना रहे हैं, तो जिस तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाएगा हमारा डिकोटोमस क्लासिफिकेशन। एक क्लास का डिकोटोमस मोर देन टू भी हो सकता है। अगर मैं एजुकेशन को लूं तो एजुकेशन में
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, पहले तो नॉन एजुकेट हो गया, है ना, अनएजुकेट, अनएजुकेट के बाद हो गया हमारा 5th स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो डिकोटोमस नहीं है, केवल 2 क्लास नहीं बन रही है, यहाँ पे मोर देन 2 क्लासेस बन रही है। तो जो हमारा 4th यूनिट है इसकी, वो मोर देन 2 क्लासेस के लिए डिवोटेड है, और जो हमारी 1 2 3 है वो हमारा डिकोटोमस क्लास के लिए है। चलिए अब लेते हैं, तो क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। ये क्लास तो मैंने बता ही दिया है कि आपको हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास को अल्फाबेट्स में। एंड क्लास फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसे, जो हमारी क्लास बनी, अगर हम इसको पैरेंथेसिस में डाल दें, ब्रैकेट में डाल दें, तो दिस डिनोट द क्लास फ्रीक्वेंसी। जनरली जो एग्जाम है या असाइनमेंट है, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे लिखाते हैं, सॉरी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए बीटा ले लेते हैं। तो अगर ए बीटा इज इक्वल टू 30 लिखेंगे तो इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जब तक आपके इसमें ये नहीं लगेगा तब तक ये मीनिंगलेस है, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंट अ क्लास नॉट अ फ्रीक्वेंसी, और जैसे ब्रैकेट लग जाता है तो इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। तो आप ये ध्यान रखना है कि हमें फ्रीक्वेंसी में डिनोट करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा क्लास बनाने के बाद। अब आता है ऑर्डर ऑफ क्लास। अब अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है तो कितनी क्लासेस पॉसिबल है। चलिए, तो ए हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखें, बताएं, अल्फा। अल्फा। और एक हम बनाते हैं टोटल, जितने भी हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको ही तो हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो एन। तो देयर आर द 3 क्लासेस, एन, ए और अल्फा। अगर 2 एट्रीब्यूट्स हो जाए, मान लेते हैं एक एट्रीब्यूट ए हुआ और बी हो गया, दूसरा एट्रीब्यूट है बीटा है, तो कितनी क्लासेस बनेंगी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अल्फा, बी का कॉम्प्लीमेंट बीटा, और एक एन। एक तो ये बन गई 1 2 3 4, तो ये हो गई। अब हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ए का बना सकते हैं बी के साथ, ए का बना सकते हैं बीटा के साथ, अल्फा बी के साथ बन सकता है, और अल्फा बीटा। तो दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे आर द 9 क्लास इफ दे आर द 2 एट्रीब्यूट्स। और अगर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स ले लें, ए बी सी, तो ऐसे ही उनकी जब क्लास बनाएंगे वो बनेंगे हमारी 27। तो इट मीन्स दैट it rise as 3 raised to the power n. If there is a single attribute and represent the number of attribute, if there is a single attribute, then there are 3 classes. If there are 2 attributes, then there are 9 classes. And if there are 3 attributes, then there are 27 classes. Okay. Relation between the class frequency. सर ये 2 एट्रीब्यूट्स में 9 कैसे बनी? देखो यहाँ पे, एक तो हमारा टोटल बन जाएगा n, n, हाँ जी, एक a एट्रीब्यूट हुआ, एक उसका कॉम्प्लीमेंट, एक b बना, एक उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये भी तो पॉसिबल होगा, ओके ओके। ये भी तो पॉसिबल होगा। तो इट पर मींस हम दैट इनको अलग क्लास क्यों ले रहे हैं? जैसे ए बी और ए बीटा का तो टोटल ए होता है, तो फिर हम ए को अलग क्यों ले रहे हैं और इनको अलग क्यों ले रहे हैं? मतलब मान लो मेरे पास 100% है, अगर मेरा ए जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरा ए मैं कहूँ मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 में से 100 में से मान लीजिए 40 मेल्स हैं, तो फीमेल कितना हुआ 60। 60, हाँ जी। बी अगर मेरा वेल्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी मेरा हुआ, इनमें से 100 में से मेरा वेल्दी मान लेते हैं वो 60 हैं, तो बीटा मेरा कितना हुआ 40। अब इनके कॉम्बिनेशन भी तो होंगे, इन पर्सन में से ऐसे पर्सन भी तो होंगे जो वेल्दी होंगे, तो दे रिप्रेजेंट बाय ए बीटा, ऐसे डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि टोटल में को हम लेके चल रहे हैं, उसको फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना। ओके तो ओके। यानी अगली जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो लेस होती चली जाएगी। एन तो टोटल था, जैसे हमने ए के बेस पर उनको एट्रीब्यूट को अलग किया तो 40 और 60 आया। अगर मैं इसमें बीटा भी इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं इन मेल में से वो पर्सन ढूंढूं जो वेल्दी भी हैं, तो वो कम आएंगे, तो इस तरह से ये डिक्रीज हो जाएगा। तो द रिलेशन इज दैट अगर एन है तो उसको हम अल्फा बीटा में
डिनोट कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। फिर ए को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ए बी और ए बीटा में। बी को हम थर्ड एट्रीब्यूट लगा के ए बी सी और ए बीटा गामा ए बी गामा में कर सकते हैं। ऐसे ही ए बीटा को हम थर्ड एट्रीब्यूट लगा के ए बीटा गामा ए बीटा सी और ए बी सी में कर सकते हैं। ऐसे अल्फा बना सकते हैं। ऐसे ही हम बी के साथ बना सकते थे इसको। बी के साथ भी हम दोबारा इसको सीरीज चालू कर सकते थे। ये तो बी हो गया और इधर बन जाता बीटा, ठीक है। फिर बी को हम फिर एक एट्रीब्यूट लगा दें ए, तो ए बी हो जाएगा ए बी ए सॉरी अल्फा बी। फिर अगर हम सी लगाएं तो हो जाएगा ए बी सी और सॉरी यहाँ पे दो पार्ट पड़ जाएंगे, ए बी सी और इधर हो जाएगा ए बी गामा। ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इट इज नॉट द मैटर कि हम इसको ए से शुरू करें, हम इसको बी से भी शुरू कर सकते हैं, सी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हुआ, ये हम यूज करेंगे आगे फर्दर। क्लास सिंबल एज ऑपरेटर, इसकी तो अभी हम जरूरत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 150, चलिए इसे नहीं छोड़ इसे करते हैं। ये भी नहीं है, अच्छा से देखते हैं। ये लेते हैं। In an observation of 100 cases, it was found the number of unmarried students was 40. Number failing the examination was 53, 55, and the number of married who failed was 30. From the information given above, find this. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि how many attributes are there. तो ठीक है, पहले बताएं आप n कितना है इस क्वेश्चन में? So 100. 100। अब एट्रीब्यूट देखना है कि हमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं। इन 100 केस इट वाज फाउंड द नंबर ऑफ अनमैरिड स्टूडेंट वाज 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्लास है वो एक मैरिड और एक अनमैरिड की बन जाएगी, यस और नॉट? यस। सेकंड, नंबर फेलिंग द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पास फेल की बात हो रही है। दिस वाज द सेकंड एट्रीब्यूट। एंड कोई ऐड होने के लिए तो नहीं है, एंड यस, तो देयर आर टू एट्रीब्यूट्स आर देयर। एक हो गया हमारा मैरिड और अनमैरिड और तीसरा हो गया पास एंड फेल। तो मान लेते हैं कि दिस ए रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि जो ए सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ए सिंबल रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ मैरिड स्टूडेंट। तो हमारा अल्फा क्या हो गया, अनमैरिड। फिर दूसरा बी ले लेते हैं, बी रिप्रेजेंट कर रहा है पास स्टूडेंट, पास रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ पास द एग्जामिनेशन। एंड बीटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल। तो अब आप बताएं इसके बेस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो एन कितना हुआ, 100। बताएं आगे क्या दिया हुआ है, 40 क्या दिया हुआ है, ए 40 अल्फा 40 है, अल्फा 40 अल्फा 40 या अल्फा हो जाएगा। ब्रैकेट 40 ना, अल्फा तो क्लास है एंड Yes. इट इज रिप्रेजेंट द, यस। नेक्स्ट, तो बीटा गिवन है 30। नहीं अभी नहीं, पहले 55 बताओ क्या है। बीटा इट इज बीटा, बीटा इज 55। नाउ नेक्स्ट, ए बीटा दिया हुआ है, मैरिड हु फेल्ड। तो मैरिड है, मैरिड भी रखो, फेल्ड क्या है, बीटा है, तो बीटा हो गया। तो ए बीटा इज 30। ठीक है। अब क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, द नंबर ऑफ मैरिड स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चाहिए इसको, ए ए चाहिए। तो हम
n हमारा क्या है, n को हमने डिवाइड किया a एंड अल्फा, तो a इज इक्वल टू हो गया a प्लस अल्फा। अल्फा हमारे पास है, n हमारे पास है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट a। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, n माइनस अल्फा। तो पहली ऑब्जर्वेशन आ गई। सेकंड, ये क्या चाहिए इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास बी चाहिए। पास b चाहिए, और b को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू b प्लस बीटा। ऐसे तो डिवाइड कर सकते थे इसको, शुरू में हम ले लेते स्टूडेंट के फाल पास और फेल। तो हमारा b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया n N माइनस, minus ये भी निकल गया। अब क्या चाहिए, the number of merit students who passed. नंबर ऑफ मैरिड स्टूडेंट हु पास्ड। चलिए बनाओ फिर, पहले देख लो क्या सिंबल चाहिए। मैरिड चाहिए, मैरिड एक है। पास चाहिए, पास का मतलब बी। बी, ठीक है, ये चाहिए, तो इसको निकालना है। तो इसमें हम इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, जो हमने ये बनाया था। तो n हमारा कितना था, 100 है ना। अल्फा कितना था, अल्फा अल्फा 40। या वहीं बना लेते हैं, कोई बात नहीं, वहीं बनाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन है, इजी रहेगा ना हम लोगों के लिए। मैं इरेज कर देता हूँ इधर। कुछ क्वेश्चन तो इस चार्ट को बनाने से भी निकल जाते हैं आराम से। कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो इजीली हो जाता है। सर ये चार्ट बनाना जरूरी तो नहीं है ना, नहीं नहीं, ऐसे भी कई कर बार सकते सीधा आता है, जैसे ये रिलेटिवली इजी अगर हैं। हाँ क्वेश्चन। हाँ, जैसे भी आपको इजी लगे, ये तो एक वे है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। ये अल्फा हुआ, तो अल्फा कितना है हमारा 40, तो ये आ गया हमारा 60। आगे हम इसमें बीटा लेके आ रहे हैं, तो ये हुआ ए बी, और फर्दर क्लास क्या बनेगी, ए बीटा। ए बीटा। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ए बीटा हमारे पास है, तो 30 हो गया। तो ये कितना होगा, 60 माइनस 30, तो ये 30 हो गया। 30। चलिए, यही पूछा था इसने। अब क्या पूछा है, अनमैरिड है ना। अनमैरिड, अनमैरिड क्या है, अल्फा, और पास बोलो बी। बी। तो ये पूछा है, अल्फा के साथ चलें, इसको फर्दर डिवाइड करें, ए अल्फा बी एंड क्या होगा अगला, अल्फा बीटा। कुछ निकल पा रहा है इससे, नहीं, इससे तो निकल पा रहा है। और कोई तरीका, चलो, अगर बाय द वे ये फेल हो जाता है तो हम एक तरीका और है, उससे भी हम कर सकते हैं। क्या तरीका है वो, देखिए, हम सिंबल के बेस पे भी फार्मूले अपने आप जनरेट कर सकते हैं। क्या तरीका है फार्मूले जनरेट करने का, हमें निकालना है, सिर्फ बी से निकल जाएगा ना ये। यस, बी से निकल जाएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी से निकाल सकते हैं इसको। बी को हम फर्दर डिवाइड करें, जैसे बी है हमारा, तो बी को हम अगर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ए बी और अल्फा बी। बी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या तरीका है जो बताने वाला था मैं, कि आप जो भी इसमें हमारे अल्फा बेटा गामा आ रहे हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 - अल्फा 1 - ए, जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे, है ना, इनटू बी। ये जस्ट एज ए नोटेशन है, मतलब फार्मूले नहीं है ये, जस्ट एक तरीका है कि हम फार्मूले याद न करके बना सकते हैं अपने। और सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट से ही बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मुझे अल्फा बी ही निकालना था, तो अल्फा बी ये ऐसे था, तो हम इसको, ये तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, तो हम क्या करें, क्लास को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें बी को, अल्फा को चेंज कर सकते हैं, 1 - ए, और ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया एन, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया बी एन, और ये हो गया मेरा माइनस ए बी एन। तो
n को लगा के फिर फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, तो इट इज b माइनस a। तो ऐसे भी आप फार्मूले बना सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन ये? इजी है कि थोड़ा? सर ये तो थोड़ा इजी लगा, पर 3 वाले मुश्किल लगते हैं। 3 वाले मुश्किल है, चलिए उसमें चलते हैं। द नंबर ऑफ अनमैरिड स्टूडेंट हु फेल्ड। अनमैरिड मतलब अल्फा और बीटा। बीटा। तो इसको अगर हम करेंगे इस तरह से ही, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस बी। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? ए माइनस बी या प्लस बी। ए यहाँ पे आएगा, नहीं सॉरी, 1 माइनस ए माइनस बी और भाई प्लस ए बी, और 1 तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे आएगा एन। तो ये दिस कैन बी फॉर्मूला। अगर आप एन यहाँ पे लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, ए की माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी से करो तो बी आएगा, ए और ए बी। और जब एन से अंदर लेके जाओगे तो एन आ जाएगा। तो चलो ऊपर चलते हैं फिर। तो ये तरीका है जो बताते हैं क्लास सिंबल्स एज ऑपरेटर। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। देखिए तरीका क्या है कि हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का, अच्छा ऑर्डर भी मैंने बताया नहीं क्या? ऑर्डर भी तो है कहीं पे। ऑर्डर ऑर्डर कहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ क्लास, ये तो छूट ही गया है। चलिए इसे देखते हैं क्या है। अगर जो हमारी क्लास है, इफ इट कंटेन वन सिंबल, तो देन द क्लास इज कॉल्ड द ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इफ दे कंटेन द टू सिंबल, देन इट इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर। अगर 3 है तो 3, और अगर खाली n है, n तो हमने कोई और एट्रीब्यूट के लिए तो कोई सिंबल यूज नहीं किया, n रिप्रेजेंट द टोटल, तो इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर 0। तो इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर 0। ओके, तो ये क्लास बनी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की, दिस इज द सेकंड ऑर्डर, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्डर, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ 0। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, तो दे आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की दी हुई है। एंड क्या पूछ रहा है ये? A number of school children was examined for the presence and absence of a certain defects, of which 3 chief descriptions were noted. Like A, development defect, A development defect को represent कर रहा है, B nerve sign को, and C lower nutrition. Given the following ultimate, these are called the, जो हमारी highest class frequency होगी, they are called the ultimate class frequencies. Okay, तो क्योंकि 3 attribute दिए हुए हैं, तो maximum order बनेगा 3 का, और these maximum order को बोलेंगे हम ultimate, तो these are the ultimate frequency. Find the frequencies of the class defined by the presence of the defect. यानी हमें जो डिफाइन करे प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट, तो डिफेक्ट हमारा ए हो सकता है, डिफेक्ट हमारा बी हो सकता है, डिफेक्ट हमारा सी हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर कैपिटल्स वाली, क्योंकि जो उनकी खाली प्रेजेंस की बात कर रहा है। तो ए बी, बी सी और ए बी 2 डिफेक्ट भी हो सकते हैं। इसने 1 डिफेक्ट की बात नहीं की है, इसने डिफेक्ट कहा है कि उनकी खाली प्रेजेंस को दिखाए। तो प्रेजेंस को दिखाने के लिए तो हमारे पास, हमने माना है ए बी सी उनके प्रेजेंस को दिखा रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द, तो पहले हमारे पास 3 हैं, तो 3 से हम पहले 2 निकाल लें और 2 से फिर 1 कर लें। क्योंकि आप मान लीजिए मुझे 2 निकालना है, ए बी निकालना है, तो जस्ट वी इंट्रोड्यूस थर्ड एट्रीब्यूट एंड इट इज ए बी सी, और क्या बनेगा? प्लस, कोई बताएगा? AC ए बी गामा ए बनेगा बी ना? है ना, क्योंकि हमने गामा। जब हम लेते हैं तो ए ये बी तो, इज ये तो इक्वल चेंज टू होगा ही ए नहीं। बी सी। नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी गामा होगा ना? यस, हाँ, क्योंकि हम ए बी में एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, तो ए बी तो रहेगा ही। तो नया एट्रीब्यूट, उसका हमें पजेसिव भी लेना है और नॉन पजेसिव भी लेना है। तो पजेसिव के साथ सी आ गया और नॉन पजेसिव के साथ गामा आ गया। तो यानी हम ए बी को निकाल सकते हैं ए बी सी और ए बी गामा के लिए। ए बी सी हमारे पास है और ए बी गामा भी होगा कहीं पे, ए बी गामा, तो इससे ए बी आ जाएगा। इस तरह से पहले आप सेकंड ऑर्डर निकाल लीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। अगर मुझे को ए निकालना है,
तो मैं इसमें एक नया एट्रीब्यूट बी डाल दे सकता हूं, तो ये हो गया ए बी। ऐसे यहाँ क्या बनेगा बताएं? ए बीटा। ए बीटा। तो जब हम ये अपर वाले निकाल लेंगे तो इनको इससे लोअर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। या इन्होंने जैसे किया है, ए को पहले ए बी और ए बीटा लिख दिया, फिर बी को कन्वर्ट करा ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं सी डाल के। अब इसमें हम ए बीटा है तो यहाँ पे सी फिर डाल सकते हैं, तो ए बीटा सी, ए बीटा गामा। तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व सिंगल प्रॉब्लम। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें। चलिए, तो पहली एक्सरसाइज तो केवल इसी बात पे थी कि आपको ये समझाना था कि क्या क्या क्लासेस बनती हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका ऑर्डर क्या है, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर की। चलिए अब लेते हैं हम सेकंड डेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब हम जब बात कर रहे थे, जब जैसे ही हम सिंगल वेरिएबल पे थे तो हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, स्क्यूनेस कर्टोसिस निकाली। जैसे ही हम लॉग 2 पे आए, जैसे हमने दो डेटा लिए, हाइट और वेट का लिया, तब हमें ये लगा कि इनके बीच में एसोसिएशन भी तो हो सकती है, इनके बीच में कोरिलेशन भी तो हो सकती है। तो जस्ट वी स्टडी द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ऐसे ही जब हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं, तो क्या वे दो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या डिपेंडेंट रहेंगे, उसको चेक करने के लिए। तो सेकंड जो चैप्टर है वो डिवोटेड है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी। ओके, इसके लिए एक और यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के लिए है कि जो डेटा हमारा है क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको। मान लीजिए मेरे पास n100 ए हमने भी निकाला था, वो 60 था किसी क्वेश्चन के लिए, और अल्फा जो आया था वो हमारा 40 था, ठीक है। अगर मैं ए बीटा को मैं लिखूं, ए बीटा ए बी इज इक्वल टू मैं 70 कर दूं, तो क्या है पॉसिबल है? क्या ए बी 70 हो सकता है? बताएं। नहीं सर। नहीं हो सर सकता ए ऑलरेडी क्योंकि 60 है तो ये हो सकता है। यस, अगर हम ऑलरेडी ए है उसमें एक क्वालिटी और ढूंढ लेंगे तो वो उससे कम ही होगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि ए में से हम फर्दर हम उसको सब डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए कंसिस्टेंट डेटा। तो अगर हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लास, या देयर आर सर्टेन कंडीशंस, अगर वो उनको फुलफिल कर रहा है तो वी से दैट द आवर डेटा इज कंसिस्टेंट। चलिए, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कोई भी हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी लोअर ऑर्डर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लोअर ऑर्डर से। सेकंड ये, तो हम इनके बेस पे वी कैन अगेन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन। कंडीशन अगर सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए जो है वो किसके, एन से कम होना चाहिए, अल्फा भी एन से कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि ए को आपने फर्दर डिवाइड किया था ए और अल्फा में, तो ए और अल्फा उसके बराबर तो हो सकते हैं पर उससे ग्रेटर नहीं हो सकते। तो दिस बिकम कंडीशन। अगर टू एट्रीब्यूट्स हैं तो क्या क्या कंडीशन है, तो ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन इन्होंने ये बना ली, ये होना चाहिए ए बी इज इक्वल ग्रेटर देन ए बी और एन माइनस एन। थर्ड कंडीशन बनाए कि ए बी शुड बी लैकी, तो होगा ही, क्योंकि हायर ऑर्डर की क्लास जो है वो लोअर ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो थर्ड कंडीशन ये बनाई। ऐसे ही दैट एंड ए बी आल्सो लेस देन इक्वल टू बीटा। तो ये फोर कंडीशन इन्होंने दो के लिए बनाई है, और ऐसे थ्री के लिए बहुत ये कंडीशंस बना दी है। तो कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और ये एग्जाम में सॉरी फॉर्मूला बुकलेट में नहीं है। तो तरीका ये है, अगर ये नहीं है तो आप सिंपल हम उनको चेक कर सकते हैं, फिर हमें सारी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। पर कभी कभी हो जाता है कि सभी फ्रीक्वेंसी, हम डेटा इतना एडुकेट नहीं होता कि हम सभी फ्रीक्वेंसी निकाल पाए, तो उस टाइम पे फिर हमें इन्हीं कंडीशन का यूज करते हुए वी हैव टू प्रूव दैट आवर डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 नंबर का आता है, अगर आता है तो चलिए देखते हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग डेटा, n इज इक्वल टू 100 है, a इतना है, b इतना है, a b इतना है। तो डेटा देख के तो नहीं लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, लग रहा है देखो ए बी लोअर
हायर ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी लोअर से कम है, यस कम है। एन ए जो है वो एन से कम है, बी भी एन से कम है। तो देन इन्होंने निकाला ए भी तो दिया हुआ ही है, सेकंड ग्रुप बनाया अल्फा बीटा का। तो अल्फा बीटा निकाल, हम ये भी चेक कर सकते थे ए बीटा बड़ा है, ये निगेटिव तो नहीं है। हम ये भी चेक कर सकते थे अल्फा बी निगेटिव तो नहीं है। हम ये भी चेक कर सकते हैं अल्फा बीटा निगेटिव तो नहीं है। तो इन्होंने क्योंकि यहाँ पे कोई भी जब भी फर्स्ट टाइम पे जब वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। अगर बाय द वे ये पॉजिटिव आया था तो हमें ये भी निकाल के देखना पड़ता। मान लो ये पॉजिटिव आया तो फिर ये भी निकाल के देखना पड़ता। अगर बाय द वे ये ही शुरू में नेगेटिव आया था तो हम यहीं पे कहते हैं कि हमारा डेटा क्या है वो इनकंसिस्टेंट है। तो इन्होंने ऐसे निकाला, इन्होंने निकाला अल्फा बीटा। हम अगर चाहें तो ए बी भी निकाल सकते हो आप। ए बी तो दिया वही है ए बीटा, तो ए बीटा कितना होगा? ए बीटा को क्या लिख सकते हैं? बताएं कोई। A minus AB। ए माइनस ए बी। तो ए है 800, ए बी 80, यस पॉजिटिव आया, ठीक है। आगे लेते हैं अल्फा बी। अल्फा बी इज बी माइनस ए बी। तो बी माइनस ए बी पॉजिटिव आ गया 400। अब निकालते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए फिर उसी से कोई इसको 1 माइनस अल्फा रखा, इसको 1 माइनस बी रखा। तो आप फार्मूला बनाएंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी। तो सब चीजें हमारे पास है, पहले पुटअप कर देते हैं। तो दिस शुड बी नेगेटिव, इट मींस दैट डेटा इज इनकंसिस्टेंट। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट में। In a locality having a population of 1000 person, 750 were males, out of whom 350 were married. Among females, the number of married ones were 350. Check the consistency of data. तो सबसे पहले तो हमें डेटा को we have to represent this data in symbolical form and then we check the consistency. तो बताएं n कितना है? 1000। 1000. नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताएं कौन कौन सा एट्रीब्यूट है? ए को क्या ले लें? मेल। मेल। और अल्फा हो जाएगा फीमेल। फीमेल। और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? मैरिड। ई को ले लेते हैं मैरिज। चलिए अब क्या दिया हुआ है? 750 वर मेल। तो इट इज व्हाट इट इज ए 750। एंड आगे क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ होम 350 वर मैरिड। इट मींस व्हाट इज दैट? ए बी। ए बी मेल, उसमें से कितने मैरिड हैं? इट इज तो ए बी इज 530 एंड अमंग फीमेल्स द नंबर ऑफ मैरिड वंस। फीमेल में जो मैरिड है, फीमेल हुआ हमारा अल्फा और उसके बाद भी मैरिड, यानी बी it is 350. तो on the basis of this you can check the consistency of the data. तो हमने ये डेटा दिया हुआ है, इससे अल्फा ये सब निकाल लिया, देखा तो यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया तो यहीं पे छोड़ दिया। सर यहाँ ऐसा है कि अगर 1000 में से 750 मेल्स हैं तो 200 हमारी फीमेल, 250 हमारी फीमेल्स हो गई। हम्म और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मैरिड फीमेल 350 है, वो हो ही यस नहीं यस यस। सकता। हाँ यानी हमें क्वेश्चन तो देख के समझ में आ रहा है कि ये गलत है, पर वी हैव टू प्रूव, है ना। ओके। चलो अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, क्या क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट का? कि टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ए बी is equal to a b upon n। अगर ऐसा है तो we say that the attribute a b are independent। अगर a b का join दोनों को मिला के इस तरह से बन पा रहा है तो the attributes are the independent attributes। ओके तो अगर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड आ जाएगा। तो
ये कंडीशन यहाँ पे देखनी है, इन सबको ऐसे ही आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, इन ए सर्वे 1000 चिल्ड्रन 811 like pizza, 752 like chow mein, and 418 like burger, 570 like pizza and chow mein। तो अगर हम इसको A कह रहे हैं, इसको आप B कह रहे हो, इसको आप C कह रहे हो, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लाइक पिज्जा एंड चाउमीन, यानी ए बी की भी है आपको, तो ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे ना। और इस तरह से आप टेस्ट द कॉन्सिक्वेंस थीम के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सेकंड हो गई। ओके, अब लेते हैं हम थर्ड। थर्ड में क्या है? थर्ड, इट इज द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। अभी तो हमने इंडिपेंडेंस देखा था, अब एसोसिएशन। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल टू इसके नहीं है तो भाई ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। तो अगर ग्रेटर है तो इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड, और अगर ये लेस है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, और अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वही सिंपल कंसेप्ट है। अब इसको हम और तरह भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से हम, ये ग्रेटर है, इसको उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। तो यानी ए बी माइनस ए बीटा ए बी अपॉन एन। अगर ये ग्रेटर देन 0 से है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन 0 से है नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर 0 है तो इंडिपेंडेंट। ओके, तो दे आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द एसोसिएशन या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे वहां पे हमने कोरिलेशन निकाला, ग्राफ तो केवल हमें ये आइडिया दे रहा था कि दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड, तो ये चीज तो हमें ये देगी कि खाली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या एसोसिएटेड। देखिए, कोरिलेशन हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, और क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम यूज करते हैं एसोसिएशन। तो इफ ये जो हमारा है ये बताएगा कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। अब इसकी एसोसिएशन कितनी स्ट्रेंथ की एसोसिएशन है, दे गिव द मेथड यूल्स कोएफिशिएंट एसोसिएशन मेथड और कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। तो क्या है ये? तो ये वही हो गया कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है। तो इनको, इन्होंने सिंबल अलग अलग दे दिया, तो वो बात यहाँ पे डेल्टा को बना लिया इन्होंने, ए बी माइनस ए बी अपॉन बीटा। तो डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये पॉजिटिव एसोसिएट हो गए, नेगेटिव एसोसिएट हो गए, और ये तो हम आते हैं इस पे मेथड ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला है हमारा यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, Q is equal to ए बी दिस। तो इसको ऐसे ना करके हम इसके लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। टू एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, तो ये हुआ मेरी क्लास, इधर लिख लेते हैं ए क्लास, ये मेरी हुई अल्फा, सॉरी यहाँ पे हम बिना उसके लिख रहे हैं क्योंकि क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख लेते हैं। तो दिस वन इज ए क्लास, ये अल्फा इसका कॉम्प्लीमेंट, ये बी, क्योंकि दो ही हमने दो हम जो एसोसिएशन पढ़ रहे हैं दे आर बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, तो इट इज बी बीटा। तो ये जो इन दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज ए बी, एंड दिस इज अल्फा बी, एंड दिस वन इज ए बीटा एंड अल्फा बीटा। ओके, अगर इसका सम करें तो क्या आएगा, बता सकता है कोई? इन दोनों को ऐड कर दें अगर, सर ये तो बी है ना हमारा। यस, तो वहां क्लास थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ओके। इधर बी है तो इधर बीटा आ गया, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। ये तो क्लास में प्रेजेंट करा था, ऐसे हम ऊपर से अगर इसको ऐड करेंगे तो ये ए और ये बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दे तो सर ये एन बन जाएगा। ये एन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे रख लेंगे, मिसिंग भी निकाल सकते हैं इसके हेल्प से भी। इस टेबल से भी अगर हम केवल दो ही एट्रीब्यूट हैं तो हम वहां पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो आप चाहें। तो देन इन द सिमिलर वे, तो हम इसका फार्मूला क्या है हमारा यूल कोएफिशिएंट का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो क्या हुआ, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी, नीचे प्लस साइन लगा दीजिए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द यूल कोएफिशिएंट। इसकी लिमिट भी -1 से +1 के बीच में होती है, सेम इंटरप्रिटेशन है जो भी हमारा कोरिलेशन में था। ठीक है, इसमें क्या करें, आप ये कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लो, तो इसको कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन लिया फर्स्ट वाला ये वाला कॉमन ले लिया,
तो यहाँ तो 1 आ गया, 1 माइनस इसके नीचे चला जाए, मान लो अगर मैं करूं, सॉरी 2 माइनस 3, अगर मैं टू को कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 तो आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसको कॉमन उठाऊंगा यहाँ से तो ये 1 माइनस इसके नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये फार्मूला बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। तो ये रिलेशनशिप हो गई बिटवीन क्यू एंड गामा में। ऐसे कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, सेम इंटरप्रिटेशन है दोनों का। तो कैलकुलेट यूल कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, सब चीजें दी हुई हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी तो हम भी पुट दिस फ्रीक्वेंसी इन द टेबल में रखते हैं। a इज इक्वल टू 600, b इज इक्वल टू 800। तो a कहाँ है हमारा, इट इज 600 और b कितना है 8, a 600 था कि, हाँ यस, b 800। और क्या गिवन है, और गिवन है हम लोगों को a b 480, a b इज 480। और क्या गिवन है भाई, n n 1000। is equal to 1000। ठीक है, तो अब आप इससे देख रहे होंगे तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, ये 800 है और ये 480 है, तो ये कितना आ गया, 320 आ गया। ओके, इन दोनों की हेल्प से ए कितना है 600, ये है 480, ये कितना आ गया 120 आ गया। और क्या निकाल सकते हैं, एन हमारे पास है 1000, ये है 600, तो ये 400 आ गया। ये 320 है, ये 400 है, तो ये कितना आ गया, ये 80 आ गया। और ये 800 है, ये 200 आ गया। तो we can find out easily the frequency and then we can apply the formula of the Joule। तो जैसे आंसर में नहीं करा हुआ, टेबल नहीं बनाया हुआ, पर हम बना सकते हैं ना, अगर यस हमको यस, सॉल्व आप बना करने सकते, इजी आप होता है। बना, यस यस, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जीएसटी है, आप इसे भी कर लीजिएगा, खत्म। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज थी। अब बताइए, इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, जो मैं बताने वाला हूँ। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर, अभी तक तो हमने एसोसिएशन पढ़ी है कि जो हमारा डिकोटोमस क्लासिफिकेशन था, यानी हमारी केवल 2 ही क्लासेस थी। अगर हमारी मोर देन 2 क्लासेस हो और उनके बीच में हमें एसोसिएशन चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर दैट वी यूज द काई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। काई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी कैसे निकालेंगे, कैसे क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम मान लेते हैं कि दे आर द 2 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स तो 2 ही होंगे क्योंकि 2 के बीच में तो निकालोगे आप एसोसिएशन। तो मान लेते हैं, चलिए ये A है और ये B है। Then A has not only the 2 classes, it has more than 2 classes। तो मान लेते हैं इसकी क्लास A1 हो गई, एक A2 हो गई, एक A3 हो गई और AS। मैं नोटेशन देख लेता हूँ, जो टेबल में है वही नोटेशन ले लेते हैं। यस, यही नोटेशन A1 A2 AR हो गई। और B की जो क्लासेस है वो B1 B2 B, मान लेते हैं जैसे स्मोकिंग और एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में हमने डिफरेंट टेबल बना दिए। पहला ले लिया अनएजुकेटेड, फिर प्लस 5th क्लास, फिर 10th क्लास, फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये हो गया नॉन एजुकेटेड, ये हो गया हमारा 5th क्लास लेवल, ये हो गया हमारा सेकंड वाला 10th क्लास, फिर दिस इस तरह से मोर देन 2 क्लासेस हो गई। और बी को हम स्मोकर ले रहे हैं कि नॉन स्मोकिंग है, ये 2 स्मोकिंग करता है, ये 5 स्मोकिंग करता है, इस तरह से। तो दे आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन द क्लासेस। एंड हियर आपने देखा था कि वहां पे इनको ऐड करने पे हमारा बी बन गया था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो वो B1 बन जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे वो B2 बन जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे BS और इन सबको ऐड करेंगे N। ऐसे ही ऊपर इन सबको ऐड करेंगे तो A1 जो वेरी करेगा वही बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, सॉरी, जो बचेगा सिंगल है। तो यहाँ पे A2 है, ये AI। तो दीज आर द लेआउट ऑफ द R/S कंटीजेंसी टेबल, जिसमें हमारी R रोज और कॉलम है। यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द coefficient chi-square coefficient of contingency coefficient of association, OIJ minus EIJ square upon EIJ and double summation। OIJ is the observed frequency, EIJ is the expected frequency। तो these are the जो हमें frequency given होंगी, जो मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन से जो पहले भी क्वेश्चन हमने करी है, these are called the observed frequency। अगर हम फिर दूसरी expected frequency निकालते हैं कि we can assume that A and B are independent।
तो हम अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते तब क्या फ्रीक्वेंसी होती, तो वो कहलाती है हमारी ई आई जे। तो वी हैव टू फाइंड आउट ओ आई जे, तो हमें गिवन होगा ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ई आई जे। ई आई जे निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो 1 1 निकालना है तो इट इज, देखिए ये नोटेशन हमारे मैट्रिक्स जैसे नोटेशन है। तो पहला वाला तो होता है रो और सेकंड वाला कॉलम को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब R1 पहली रो का सम इंटू C1 पहले कॉलम का सम डिवाइड बाई n। ओके, यही तो कंडीशन थी हमारी कि हमारा ए बी अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसकी क्या कंडीशन थी कि ए होना चाहिए, उसका बी होना चाहिए और डिवाइड बाई एन होना चाहिए। तो हम ये मानते हुए इनकी सभी की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर मुझे मान लो E13 की निकालनी है तो इट इज R1, वन क्या ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को। तो R1 इंटू सॉरी, R1 इज रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट रो, okay, and C3 sum of third row and divide by the n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम उसका सम अप करेंगे। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यस दिस आर फ्रीक्वेंसी, इन तो नोटेशन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हम फिर इनको नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन से करा देता हूँ आपको। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन द टेम्परमेंट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो देयर आर द थ्री क्लासेस ऑफ ब्रदर एंड थ्री क्लास ऑफ सिस्टर एंड दीज आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी and these are the total. So first of all, we have to find out the expected frequency of this one, this one, this one, this one, this one. So first of all, we have to find out the 9 expected frequency. तो अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है एंड इट इज A1 and it is A2 A3, so it is A1 B1। so we have to find out the expected frequency of A1 B1। so this is equal to A1 into B1 अपॉन N1 n सॉरी। तो A1 का टोटल यहाँ मिलेगा तो दिस इंटू बी, बी का टोटल यहाँ मिलेगा B1 का दिस अपॉन n। तो दिस विल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। ऐसे हम सेकंड के निकालेंगे, थर्ड के निकालेंगे, सबके ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट what yes, this we have to calculate chi-square and chi-square is the observed minus expected। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड बाय ई आई जे और फिर उसका सम अप करेंगे। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे करा कि दिस इज द क्लास, दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ए बी A1 B1 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज 850 एंड द कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज 785। तो इसमें ये ध्यान रखना है जो इसकी आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रखेंगे उसी की एक्सपेक्टेड रखोगे। A1 B1, तो A1 B1 is 571 and you can find out this one। तो दिस वन फिर क्या निकालना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। तो इसमें से इसको लेस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया एंड देन डिवाइड बाय ई, ई से डिवाइड कर दिया। तो दिस आर सम ऑफ दिस। तो वो जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था देन वी कैन फाइंड आउट द काई स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो बन के आता है वो ये आता है फर्स्ट पहले आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाले फिर काई स्क्वायर निकाले। अब हम टेस्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि to make the to find out the association we have to find out chi square upon chi square plus n, इसको निकालना होगा। इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटीजेंसी C। तो chi square की आप वैल्यू निकाल ही चुके हो। तो दिस अपॉन chi square plus n, n is the total frequency, वो निकाल लिया आपने। एंड देन वी हैव टू कंपेयर दिस C with the this one। it is R, it is the calculated value समझ लो और ये it is the tabulated value R minus 1 upon R। R is the represent the order, पर ये जो निकलेगा ये उसी केस में निकलेगा जिसके ऑर्डर सेम होंगे। 2/2 होना चाहिए, 3/3। तो अगर हमारा हमने अपने वाला केस देखे तो इट इज 1 2 3 1 2 2, तो 3/3। तो यहाँ पे हम C निकालेंगे। तो C हो गया 3/3 का मतलब हो गया R इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 एंड इसका स्क्वायर रूट जो भी निकल के आएगा। अगर जो हमारी इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं C की, इसकी वैल्यू इसके पास आती है तब तो ये हाईली कोरिलेटेड होंगे। अगर इससे दूर होती है तो इट इज ए हाईली और कहते हैं हम लो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में आ गया हमारा दिस। तो ये काई स्क्वायर की कंटीन्यूअस निकाली, ऑर्डर 3 था तो 8.13 है। तो ये तो बहुत दूर है, ये 0.8 कह रहा है, ये 0.07। तो इट मींस दैट देयर इज अ वेरी वेरी वीक एसोसिएशन बिटवीन द नेचर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द first of all we have to find out the chi square, then we have to find out the coefficient of contingency and then
we find the association, we have to find out this C maximum and compare C maximum with this one. अगर ये इसके बिल्कुल पास है तो हम कहेंगे हाई को एसोसिएशन है, और अगर हम कहेंगे अगर से दूर जा रहा है तो वीक एसोसिएशन। तो इन अ सिमिलर वे, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ये। एक क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का इसके ऊपर ही आता है, टू फाइंड आउट द काई स्क्वायर। तो अभी तो खैर ये बहुत इजी लग रहा होगा, जब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े टिपिकल भी होते हैं, वहां पे हम क्लास ही नहीं बना पाते। तो आप इसकी पहले प्रैक्टिस करें, जो भी इसमें अनसोल्व दिए हुए हैं उनको देखें, अपने आप कोशिश करें, फिर बाद में उसका सोल्यूशन तो दिया हुआ ही है पीछे, तो उससे आप मैच कर लें कि आपका सोल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। बताएं। ये तो हो गया मेरी तरफ से पूरा।